Hello, dear UPSC CSC aspirants, and welcome to EduTalk. So, guys, if you are preparing for UPSC CSAT 2027, this series is going to be very, very useful for you. Now, guys, in 2026, the type of passages and the type of questions that were asked in the CSAT exam were really challenging for the aspirants. And we are going to start from right there so that we can understand what kind of questions are thrown at us and how do we tackle and how do we prepare for such exams. So today we are going to start with our practice passages and we will see what kind of passages are asked in the exam, what kind of questions are asked in the exam, what is the difficulty level, and what could be relevant sources to prepare for it. Now, guys, if I tell you that we can now compare CSAT passages with CAT passages, right? So that would not be an understatement because the passages that are given now are really really confusing and very challenging in the assumption part. So we will build up on that as we go along. But first, let's decode the previous year passages that were given in the year 2026. So we'll start from there and then we'll pick up what we need to learn in from these passages. But before we go any further, guys, I would like to inform you about our special courses. Now, guys, you can visit our website. There is a very simple way of going about it. Just visit your browser and just type edutap.in, EDUTAP, edutap.in, and press enter and you will land on our homepage. And as you click on CSAT courses, you will and scroll down, you will see the courses available to you. You have your master course which is available to you absolutely free of cost for 2 days. Guys, you can use this course for 2 days and you can watch as many videos as you want so that you can understand the concept, the quality of the concepts and the quality of the content that we are providing you. And beyond all that, you also understand what are the deliverables. So you get this master course free for 2 days. And this master course includes all the concept classes for your quants, reasoning and comprehension part. Your live revision classes will be there. Your practice questions with every chapter, then quizzes with every chapter. Then there are sectional tests, full length tests, mock tests, previous year questions, doubt and query resolution, and support system is provided to you. So guys, come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. Alright guys, so let's begin with our previous year passages from the year 2026. So these were the passages. We will solve a couple of passages here so that we understand that what kind of passages are asked and what is the difficulty level. So you will find that passages are not difficult. The questions framed on the passages are really really challenging because the options are very very close. So let's read the first passage and let's try to solve it. This is from the previous year 2026 exam. Okay. So you are given conclusions, two conclusions, and we have to find which of the conclusions is valid or invalid. So चलिए start करते हैं guys. When SARS-CoV-2, the COVID-19, right? So when SARS-CoV-2 was first detected in 2019, it was truly novel virus for the world. What is novel? New, something we have not seen before that. So it was truly a novel virus for the world. At that time, no one in the world had been exposed to SARS-CoV or had specific immunity against it. कि उस टाइम पे जब ये कोविड आया तो कोई भी दुनिया में इसकी किसी के पास दुनिया में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी और कोई भी अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था. इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि दूसरी तरफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन exposed to HMPV. HMPV basically stands for humano pneumonia virus, basically simple cold. So जो वायरल हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं. So in contrast, people across the world have been exposed to HMPV for decades and the virus is well studied. और उसके बारे में हम सबको मालूम है, जो नॉर्मल कोल्ड होता है हमें तो निमोनिया हो जाता है उसके बारे में सबको मालूम है. तो HMPV and SARS belong to two very different virus families with fundamentally different characteristics and epidemiology. विद स्ट्रॉन्ग सीजनैलिटी सीन इन HMPV. HMPV में तो सीजनैलिटी भी होती है, मतलब वो जब सर्दी चेंज हो रही होती है, सर्दी से गर्मी आ रही होती है, गर्मी से सर्दी आ रही होती है, तब होता है. अनलाइक कोविड, लेकिन
किसी सीजन का वो नहीं, मोहताज नहीं है, वो जब होगा तब ही हो जाएगा. बोथ viruses cause different severity of symptoms, particularly over the long term, and the affected population segments do not fully overlap. के HMPV और जो वायरस है, जो ये अपना कोविड वायरस है, ये अलग अलग हैं. इनके सिम्टम्स अलग हैं, इनकी सीजनैलिटी अलग है, एपिडेमोलॉजी अलग है, करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, और डिफरेंट वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये. और इनकी जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो भी ओवरलैप नहीं करती. तो इन जनरल HMPV causes milder illness with deaths being very rare with no long term post viral symptoms. जब जनरली निमोनिया से अब डेथ्स नहीं होती और सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा मतलब हाई वो नहीं होते, रिस्क नहीं होता, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. तो उसने बोला कि जो HMPV और जो वायरस है कोविड, वो बिल्कुल अलग अलग हैं, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है. तो ये समझने के बाद अब क्वेश्चन करते हैं. उसने दो कंक्लूजन दिए हैं, हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है या इनवैलिड है. तो पहला है, दो सार्स कोविड एंड HMPV आर सिमिलर वायरसेस with somewhat different epidemiology. The former became a pandemic because it was novel and people had not been exposed to it. Guys, छोटी सी चीज़ है जो नॉर्मल आपके कॉन्टेक्स्ट से डिविएट कर जाएगी और वही आपको पकड़नी होगी. देखो उसने बोला दे आर सिमिलर वायरसेस, लेकिन ऊपर उसने क्या बोला, दे बिलोंग टू टू वेरी डिफरेंट वायरस फैमिलीज. तो ये गलत हो जाता है, इट स्टैंड्स इनकरेक्ट है. Second conclusion उसने दिया, the two viruses have fundamentally different impacts on human populations, yes, and should not therefore be dealt with in a similar manner. बिल्कुल सही बात है कि दोनों वायरस फंडामेंटली डिफरेंट है, जो उसने बोला भी है, और दोनों को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, दोनों की एफिकेसी अलग है, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, एपिडेमियोलॉजी अलग है. तो दे कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन द सेम case. So this is correct. So second conclusion was valid. So only option 2 was valid. So option B was your correct answer, guys. Okay. Next question, guys. Okay, so this was the same passage, but this is a different question. Now the question is, which of the following reflect the intent of the writer in the above passage? ये इनमें से कौन सा है जो राइटर के इंटेंट को सही तरह से रिफ्लेक्ट करता है? तो पढ़ते हैं. टू इवॉल्व मेथोडोलॉजीज फॉर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द टू वायरसेस, के ताकि हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ अलग अलग मेथोडोलॉजीज उनको हम इवॉल्व कर पाएँ. बिल्कुल सही बात. उसने बोला कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो इनको सेम नहीं ट्रीट करना चाहिए, अलग अलग मेथड होने चाहिए ट्रीट करने के. तो यस, दिस इज करेक्ट. Then second is, guys, to establish the epidemiological similarities and differences between, to establish epidemiological similarities and differences. हाँ, ये भी करेक्ट है. नहीं, इसमें कहीं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं दोबारा पढ़ रहा था. तो इवॉल्व मेथोडोलॉजीज फॉर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, नहीं, एनालिसिस करने के लिए नहीं, सॉरी गाइस, नहीं ये गलत है. एनालिसिस करने के लिए नहीं, ये आई थिंक किसके लिए है, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंस समझने के लिए है. सेकंड है, टू एस्टैब्लिश एपिडेमियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू वायरसेस. यस. Third, to offer a better understanding of the remedies of HMPV when analyzed in conjunction with SARS-CoV-2. Remedies of HMPV नहीं guys, ये भी सेंस नहीं बना रहा. सेकंड देखते हैं guys, to establish epidemiological similarities. सिमिलैरिटी तो है ही नहीं उसमें. अरे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना ऊपर, देखने के बाद, तो ये तीनों ही गलत हो गए यहाँ पे गाइस. नहीं, देर इज नो एपिडेमियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, दे आर फंडामेंटली डिफरेंट, उसने बोला है. सो देर इज नो सिमिलैरिटी. तो ये डिफरेंसेस मैं समझ सकता था, लेकिन सिमिलैरिटीज नहीं है दोनों के बीच में, तो तीनों ही गलत हो गए यहाँ पे. तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देखो हर चीज को पहले कंसिडर इट करेक्ट अनलेस यू फाइंड समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट इट, तो वो आपको पढ़ के समझना पड़ता है. तो दस तीनों यहाँ पर गलत हैं. थर्ड है गाइज इसमें उसने फिर हमें क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज. अच्छा, क्या इन्फ्रेंस दिए हैं वो हमें बताना है. तो देखते हैं गाइज. HMPV हैज हिस्टोरिकली हैड लॉन्गर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टडीज व्हेन कंपेयर्ड विद सार्स कोविड. ये उसने दिया भी हुआ है मेरे ख्याल से. हाँ, ये देखो, the people have across the world have been exposed to HMPV for decades and the virus is well studied. Yes, तो बिल्कुल करेक्ट है ये. Second, the two viruses are different from each other and this results in
मार्केडली डिफरेंट आउटकम्स अमंगस्ट दोज अफेक्टेड। वेरी गुड, उसने क्लियरली बोला है कि एचएमपीवी में माइल्डर इलनेस होती है, कोविड में मरने के चांस हो जाते हैं। सो दे आर डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट आउटकम्स, सो दैट्स आल्सो करेक्ट। Long term impacts of the two viruses are dissimilar and this is an important differentiator between them. उसने बोला भी है particularly over the long term, ये देखो, तो this is also correct. Yes, long term effect दोनों के अलग अलग हैं बिल्कुल। And first, one of the common factors between the two viruses is seasonal specificity। नहीं guys, उसने बोला है strong seasonality HMPV में होती है unlike COVID-19, तो ये गलत है, this is not correct. So only 1 2 3, 1 2 3 का ऑप्शन है, yes, option B is your correct answer। चलिए ये था गाइज आपका पहला पैसेज। एक और पैसेज ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। तो उसमें भी इसने पहले अजम्पशंस दिए हमें, तो पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर अजम्पशन देखेंगे। चलिए गाइज तो पढ़ते हैं। इंडिया इज स्टार्टिंग टू डिप्लॉय एआई फॉर क्रिटिकल यूज केसेस सच एज वेदर फोरकास्टिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड कंट्रोल, crop yield optimization. However, penetration is limited to a small subset of tech-savvy farmers. लेकिन जो AI की penetration है कि इंडिया ने AI डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है फॉर क्रिटिकल केसेस जैसे वेदर फोरकास्ट करने के लिए, पेस्ट डिटेक्शन कंट्रोल के लिए और क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लेकिन उसने बोला है ये सिर्फ लिमिटेड है टू अ स्मॉल सबसेट ऑफ टेक सेवी फार्मर्स। इन द यूएस एंड यूरोप जनरेटिव एआई टूल्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग प्रिसीजन फार्मिंग, जबकि यूरोप में और अमेरिका में जनरेटिव एआई टूल्स ने प्रिसीजन फार्मिंग ऑफर कर दी है एट स्केल, मतलब बड़े स्केल पे, इंटीग्रेटिंग लार्ज डेटा सेट्स टू प्रोवाइड रियल टाइम एग्रोनॉमिक इंसाइट्स। वो बहुत आगे निकल चुके हैं, कहने का मतलब यह है एआई के यूज में फॉर फार्मिंग, फॉर एग्रीकल्चर। फॉर एट स्केल इंटीग्रेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एआई टूल्स इन इंडिया, इट वुड बी हेल्पफुल टू डेवलप इंडियन लैंग्वेजेस बेस्ड एआई टूल्स फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, पार्टनर विद एगटेक्स। तो पहले तो उनको क्या, आप क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर हमें बड़े स्केल पे एआई को रोल आउट करना है तो हमें इंडियन लैंग्वेजेस में एआई टूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि छोटे फार्मर्स उनको यूज़ कर पाएँ। एगटेक के साथ पार्टनर करना पड़ेगा टू क्रिएट अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस, तो एग्रो टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ पार्टनर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एंड डिसेमिनेट एआई बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू एआई बेस्ड जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो किसानों को डिसेमिनेट करनी पड़ेंगी थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो उसने अब उसने अजम्पशन दिए हैं, देखते हैं कौन से अजम्पशन वैलिड है और कौन से अजम्पशन इनवैलिड है गाइस। तो पहला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैज मार्च्ड अहेड इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल फैसिलिटेटेड बाय अडॉप्शन ऑफ एआई टूल्स। नहीं गाइस, देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आगे निकल गई है एआई की वजह से, ये नहीं कह रहा एआई की वजह से उन्होंने प्रिसीजन फार्मिंग स्टार्ट कर दी है, बट दैट डज नॉट मीन के उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो दिस इज इनकरेक्ट, नॉट मतलब नॉट मेंशनड और एंड कैन नॉट बी क्या बोलते हैं, it cannot be understood or it cannot be assumed from the passage. Second, affordable AI tools rendered available in local languages can help AI based solutions reach more and more small farmers. Yes, affordable AI tools हो जो local languages में काम करें वो ज़्यादा benefit करेंगे इंडिया में, इसने बिल्कुल ठीक बोला है। And third, though penetration is yet low, critical application areas deploying AI tools are already in use in India. Yes, उसने पहली लाइन में ही बोला India is starting to deploy AI for critical cases, so they are already in use. So correct. So 2 and 3 were correct. So option D was your correct answer. 2 and 3 only. First was correct. First incorrect था, तो उसको हम यहीं से एलिमिनेट कर सकते थे, और ओनली 2 का भी मेरे ख्याल से यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं बन रहा था। ठीक है, सो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अच्छा, सेम पैसेज है लेकिन उसने अभी हमें क्या दी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। चलिए तो पढ़ते हैं। टेक सेवी फार्मर्स विल ड्राइव द एगटेक कंपनीज ऑफ द फ्यूचर, कि टेक सेवी फार्मर्स एगटेक कंपनीज को ड्राइव करेंगे, नॉट मेंशन्ड एंड कैन नॉट बी inferred from the passage, so incorrect. The development of advisory services by government programs for the use of AI tools in agriculture would be helpful. The development of advisory services, ये देखो AI based advisory services बोला है, तो they will be helpful. Yes, correct, उसने बोला बहुत helpful होंगी ये चीज़। Third है guys, in the US and Europe, AI tools have replaced traditional agricultural practices. AI tools have replace कर दिया है उन्होंने, replace नहीं किया है, वो हेल्प करने लगे हैं प्रिसीजन फार्मिंग में एट स्केल पे। तो इट्स नॉट कि दे हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दे आर यूजिंग देम
to benefit their production. एंड तो ये गलत है. एंड फोर्थ है द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट्स फॉर यूज इन रियल टाइम एग्रोनॉमिक एनालिसिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी. यस, यूएस यूरोप में यूज़ हो ही रहा है, इंडिया में भी हम यूज़ कर ही रहे हैं रियल टाइम एग्रोनॉमिक एनालिसिस के लिए, जिसको जिसको प्रिसिशन फार्मिंग बोलते हैं. तो यस, दैट इज करेक्ट. सो 1 and 3 वर नॉट करेक्ट. सो 1 and 3 है. यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. तो गाइज ऐसे आपको पैसेजेस, देखो पैसेज मुश्किल नहीं है पढ़ के समझने में, मुश्किल है इनके जो ऑप्शंस हैं, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उनको एलिमिनेट करना. तो अब एक बार ये सॉल्व करेंगे सारे पैसेजेस 2026 वाले, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे सेशंस में अपने एलिमिनेशन मेथड कैसे फॉलो करना है, अजम्पशंस को क्या समझना है, इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, राइट, कंक्लूजन क्या होता है. तो हर वो चीज़ पिकअप करेंगे अपने आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर. बट गाइज टिल देन हमें, अच्छा मैं आपको जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे के जाना चाहता हूँ. ये पैसेज पढ़िए, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही है एक. तो ये पैसेज पढ़िए, इसमें आपको नीचे क्वेश्चन दिए, 2 अजम्पशन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा अजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है, और आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का. और गाइज जाने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि अगर आपकी रेगुलर रीडिंग हैबिट है तो कौन से पर्टिकुलर वर्टिकल्स हैं जो आपको ज़रूर फोकस करने चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए. तो गाइज ये 7 टॉपिक्स हैं जो मुझे लगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में. इकोनॉमिक इश्यूज हो गए आपके, सोशल इश्यूज हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, रूरल इश्यूज हो गए, हेल्थ केयर हो गया, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट हो गया, करंट बर्निंग इश्यूज विच आर नॉट पॉलिटिकल हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे एआई हो गया, अभी हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी बहुत टॉपिक्स हैं. बट ये मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने बार बार देखे हैं. तो इनके ऊपर आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ते रहिए. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन. और गाइज अगर आपको स्पेसिफिक बुक्स की ज़रूरत है, तो गाइज अगर आपको एक बुक चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो अरिहंत की, जिसमें क्रैकिंग सी सैट पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है. इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन सब मिलेगा. अगर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बुक चाहिए तो आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, जीकेपी पब्लिकेशन की, अशोक कुमार सिंह और नगेंद्र प्रताप की. ये भी अच्छी बुक है, बट ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए है, मतलब टारगेटेड है. एक वो वाली जो है अरिहंत वाली, वो आपकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है, और ये वाली अकेले कॉम्प्रिहेंशन के लिए. तो यू कैन चूज आइदर और बोथ एंड यू कैन यूज देम फॉर योर प्रिपरेशन. बट गाइज जाने से पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो डेमो कोर्स है वो 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, सिर्फ 2 दिन के लिए. ठीक है, आप 2 दिन तक उन क्लासेस को अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहो आप देख सकते हो, हमारी कंटेंट क्वालिटी चेक कर सकते हो. तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लेकिन मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है गाइज. आपने बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in. ये आप टाइप करोगे तो सीधा आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे. यहाँ पे आपको नीचे दिखेंगे सीसेट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, और ये रहे आपके जो कोर्सेज हैं. ये है मास्टर कोर्स आपका, जो मैं बोल रहा था 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. और ये है हमारा एक्चुअल मास्टर कोर्स जो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, और इस पे अभी आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है. एंड द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT75. तो इनमें आपको कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब आपको यहाँ मिलेगा विद डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन एंड गाइडेड मेंटरशिप एज वेल. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. तो ऐसे ही गाइज हम ये पहले PYQ सारे कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटेंट वाला पार्ट. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्सेज, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys for your patience and for your time. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. So all the very best. God bless you and keep up the good work. See you in the next lecture. Till then, have a good time.